Hello everyone, welcome to today's discussion on India's priority sector lending. Means प्राथमिकता क्षेत्र ऋण. Important topics for civil services examinations, prelims and mains both. And this topics relates preliminary examination syllabus, cover current events of national and international importance. Main examinations, general study paper 3, Indian economy and issues relating to planning, mobilization of resources, growth, development and employment. What's on the ongoing story? क्या है मामला? Industry body CII has proposed reforms in India priority sector lending framework suggesting the inclusion of emerging sectors and high impact sectors like digital infrastructure, green initiatives, healthcare and innovative manufacturing. अर्थात उद्योग मंडल CII ने भारत के प्राथमिकता क्षेत्र ऋण ढांचे में सुधार का प्रस्ताव दिया है, जिसमें उभरते क्षेत्रों और डिजिटल बुनियादी ढांचे, हरित पहल, स्वास्थ्य सेवा और नवीन विनिर्माण जैसे उच्च प्रभाव वाले क्षेत्रों को शामिल करने का सुझाव दिया गया है. सो व्हाट इज द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग? प्राथमिकता क्षेत्र ऋण क्या है? सबसे पहले यह जाने. प्रायोरिटी सेक्टर रिफर्स टू दोज सेक्टर्स विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंसीडर as important for the development of the basic needs for the country. They are assigned priority over other sectors. The banks are mandated to encourage the growth of such sectors with adequate and timely credit. The priority sector lending classification and guidelines released by the RBI are intended to align with emerging national priorities and bring a sharper focus on inclusive development, building a consensus among all stakeholders. It enables better credit penetration to credit deficient areas, increasing lending to small and marginal farmers and weaker sections. Boost credit to renewable energy and health infrastructure and allied sectors that need credit boost which is otherwise difficult to avail. अर्थात प्राथमिकता क्षेत्र से तात्पर्य उन क्षेत्रों से हैं जिन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश की बुनियादी जरूरतों के विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं. उन्हें अन्य क्षेत्रों की तुलना में प्राथमिकता दी जाती है. बैंकों को पर्याप्त और समय पर ऋण देकर ऐसे क्षेत्रों के विकास को प्रोत्साहित करने का अधिकार है. रिजर्व बैंक द्वारा जारी प्राथमिकता क्षेत्र ऋण वर्गीकरण और दिशा निर्देशों का उद्देश्य उभरती राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ तालमेल बिठाना तथा समावेशी विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करना तथा सभी हितधारकों के बीच आम सहमति बनाना है. इससे ऋण की कमी वाले क्षेत्रों में बेहतर ऋण पहुंच संभव होगी. साथ ही छोटे और सीमांत किसानों तथा कमजोर वर्गों को ऋण देने में वृद्धि होगी. नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य संरचना, अवसंरचना और संबद्ध क्षेत्रों को ऋण मिलेगा जिन्हें ऋण की आवश्यकता है और जिन्हें अन्यथा प्राप्त करना कठिन है. कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री सीक्स रिफॉर्म्स इन इंडिया प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग फ्रेमवर्क. अर्थात सीआईआई ने भारत के प्राथमिकता क्षेत्र ऋण ढांचे में सुधार की मांग की है. arguing that current development finance institutions like SIDBI and NABFID means National Bank for Financing Infrastructure and Development have their roles cut out as they have a remarked sector to finance. The chamber also suggested the setting up of a high-level committee to look at the revision of PSL norms
and explore the need for any new DFIs to cater to some of the new and emerging sectors। अर्थात ये तर्क देते हुए कि सिडबी और राष्ट्रीय अवसंरचना एवं विकास वित्त पोषण बैंक जैसे वर्तमान विकास वित्त संस्थान की भूमिकाएं निर्धारित हैं, क्योंकि उन्होंने वित्त पोषण के लिए क्षेत्रों को चिन्हित किया है, चैम्बर ने पीएसएल मानदंडों के संशोधन पर विचार करने और कुछ नए और उभरते क्षेत्रों को पूरा करने के लिए किसी भी नए डीएफआई की आवश्यकता का पता लगाने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित करने का भी सुझाव दिया है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग इज ए पॉलिसी टूल एंड टू इंश्योरिंग दैट की सेक्टर्स क्रूशियल to the nation's development receive adequate financial support mandated by the Reserve Bank of India. PSL obligate banks to allocate a specified proportion of their loans to sectors such as agriculture, education, housing and small industries। अर्थात प्राथमिकता क्षेत्र ऋण एक नीतिगत उपकरण है जिसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि राष्ट्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रमुख क्षेत्रों को पर्याप्त वित्तीय सहायता मिले। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत पीएसएल बैंकों को अपने ऋणों का एक निर्दिष्ट अनुपात एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हाउसिंग एंड स्मॉल इंडस्ट्री जैसे क्षेत्रों को आवंटित करने के लिए बाध्य करता है। डिस्पाइट इट्स मैसिव सक्सेस, द पीएसएल फ्रेमवर्क रिक्वायर्स रेगुलर recalibration to remain relevant। This recalibration is essential to ensure that financial resources are optimally distributed in harmony with our vision of Viksit Bharat 2047 CII state। अर्थात अपनी व्यापक सफलता के बावजूद पीएसएल ढांचे को प्रासंगिक बने रहने के लिए रेगुलरली रूप से पुनर्संयोजन की आवश्यकता है। सीआईआई ने कहा कि यह पुनर्संयोजन यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि फाइनेंशियल रिसोर्सेस का इष्टतम वितरण हो जो कि हमारे विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप हो। फॉर इंस्टेंस, while agriculture contributes 14% of the GDP today, its PSL allocation remains at 18%, unchanged from when its GDP share exceeded 30%. Similarly, sectors like infrastructure and innovative manufacturing lack adequate PSL focus despite their potential to drive economic growth, the chamber pointed out। अर्थात उदाहरण के लिए समझें कि आज कृषि जीडीपी में 14% का योगदान देती है, लेकिन इसका पीएसएल आवंटन 18% पर बना हुआ है, जो तब से परिवर्तित है जब इसका जीडीपी हिस्सा 30% से अधिक था। इसी तरह बुनियादी ढांचे और अभिनव विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में आर्थिक विकास को गति देने की क्षमता के बावजूद पर्याप्त पीएसएल फोकस की कमी है। सो डू यू नो, as per RBI guidelines, it is mandatory for banks to extend 40% of their adjusted net bank credit to the priority sector। At present, 7 sectors, agriculture, micro, small and medium enterprises, MSME, export credit, education, housing, social infrastructure and renewable energy are considered for priority sector lending। आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार बैंकों के लिए अपने समायोजित शुद्ध बैंक ऋण का 40% प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को देना अनिवार्य है और वर्तमान में 7 क्षेत्रों में कृषि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, निर्यात ऋण, शिक्षा, आवास, सामाजिक बुनियादी ढांचा और नवीकरणीय ऊर्जा को प्राथमिकता वाले क्षेत्र के ऋण के लिए माना जाता है। यहां पर अब आपको ये नजर डालना है कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में, जैसा कि मैं अभी लेक्चर में भी मेंशन किया है, तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में क्या क्या चीजें आती है चार्ट के माध्यम से आप समझ सकते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल लोन्स, स्मॉल रोड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स, प्रोफेशनल एंड सेल्फ एम्प्लॉयड, रिटेल ट्रेड लोन्स, एजुकेशनल लोन, हाउसिंग लोन, कंजम्पशन लोन, स्टेट स्पॉन्सर्ड कॉर्पोरेशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अदर रिकमेंडेड प्रायोरिटी सेक्टर्स। अब आप देखिए कि इससे रिलेटेड प्रिलिमिनरी एग्जाम्स में क्वेश्चन
सिविल सर्विसेज एग्जाम 2013 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन था प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग बाय बैंक्स इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूट्स द लेंडिंग टू। ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन इज एग्रीकल्चर, सेकंड इज माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, थर्ड इज वीकर सेक्शंस एंड फोर्थ ऑल ऑफ द एबव। तो अब आप देखिए, यदि आप इस लेक्चर को सुने तो निश्चित उत्तर आपको मिल गया, आप यहाँ समझ चुके हैं। और इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, और ये जो क्वेश्चंस हैं कैसे क्वेश्चंस बनते हैं मेन एग्जाम्स में भी, और अपने आप से भी क्वेश्चन को जनरेट करेंगे तो क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, क्रिएट टू क्रिटिकली इवैल्यूएट द सक्सेस ऑफ द पीएसएल स्कीम, अर्थात पीएसएल योजना की सफलता का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। सेकेंड क्वेश्चन, जनरेट व्हाट आर द डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, अर्थात विकास वित्त संस्थान क्या है। व्हाट आर द इमर्जिंग सेक्टर्स, अर्थात उभरते क्षेत्र कौन से हैं। व्हाट आर द वेरियस कमिटीज एसोसिएटेड विद पीएसएल, पीएसएल से जुड़ी विभिन्न समितियां कौन सी हैं। व्हाट आर द कैटेगरीज अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर, प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सी श्रेणियां हैं। तो दिस लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ योर एग्जाम्स। अगले लेक्चर में हम आगे चर्चा करेंगे, तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।